You can write first question. A thin uniform rod. A thin uniform rod AB of mass 1 kg moves translationally with linear acceleration of 2 meter per second square. With linear acceleration of 2 meter per second square. Due to forces F1 and F2 as shown. The distance between the points at which these forces acts is 20 centimeter. And F2 is 5 Newton. And F2 is 5 Newton. Find length of the rod. And F2 is 5 Newton. Find length of the rod. एक बार repeat कर दो the distance between the points at which these forces act के बाद Force X is 20 centimeter. And F2 is 5 Newton. Find length of the rod. हमें ऐसे दिया, so you have a rod AB. ये linearly move कर रही है with an acceleration of 2 meter per second square. Mass इसका given है, it's 1 kg. F1 का no. और F2 का मैग्नीट्यूड हमारे को दिया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है that is 5 न्यूटन. तो हमने बताना है लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है. The basic concept is because हमें दिया है कि ये ट्रांसलेशनली मूव कर रही है, तो that makes clear कि इस पे नेट फोर्स 0 है. Because कोई भी चीज लीनियरली मूव कर रही है, because अगर टॉर्क होती तो ये रोटेट भी करती. So because we are given that it's moving linearly with an acceleration of 2 meter per second square, means net torque about center of mass is 0. So अगर मैं center of mass लेता हूँ से C, F1 का जो डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ रॉड L है, तो ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/2 माइनस A, और A हमारे को दिया है that A is 20 सेंटीमीटर. Distance between the 2 points at which forces acts, that's 20. So A हमारे को given है 20. So दो concept, net torque 0 है, मतलब F1 और F2 की torque को देख के भी पता चल रहा है they're in opposite direction. F2 के कारण अगर मैं देखूं सिर्फ F2 के कारण, तो it will rotate clockwise, anti-clockwise. F2 के कारण clockwise और F1 के कारण anti-clockwise. और ये दोनों अगर बैलेंस हो जाएंगे टॉर्क, तो नेट टॉर्क विल बी 0. तो हमें दिया नेट टॉर्क 0 है, बट ये ट्रांसलेशनली मूव कर रही है. अब मेरे को सिंपल कोई अगर सिर्फ यही बताना हो कि F1 5 से ज्यादा होगा या कम होगा, बता सकते हो ऐसे देख के? सिर्फ कम होगा सर. कम होगा बिकॉज F2 का डिस्टेंस कम है, तो F1 का मैग्नीट्यूड कम होगा. बिकॉज टॉर्क 0 का मतलब है कि F1 into L/2 is equal to F2 into L/2 minus A. तो इसकी नेट एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज F2 minus F1 upon mass. बिकॉज एक्सेलरेशन बतानी है, तो एक्सेलरेशन इज बिकॉज ट्रांसलेशनली मूव कर रही है, तो सारे पॉइंट्स की एक्सेलरेशन सेम है. इस पे नेट फोर्स लग रही है F2 minus F1, तो एक्सेलरेशन इज F2 minus F1 upon A. नेट टॉर्क इज 0 means F2 into L/2 minus A is equal to F1 into L/2.
सो इन दोनों इक्वेशन से एल की वैल्यू निकालनी थी. कंसेप्ट लिख लो, फिर सॉल्व करना. Because it is given that rod is moving translationally. Because it is given that rod is moving translationally. Therefore, net torque on the rod is zero. Therefore, net torque on the rod is zero. And linear acceleration is ratio of net force and mass of the rod. Sir, length of rod 1 meter है. हो सकता है वन हो. बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था. Acceleration is net force over mass. Mass हमें given है 1 kg, acceleration भी given है 2. तो F2 minus F1 की वैल्यू पता है. F2 minus F1 is 2. A भी पता है 20, so 0.2 मीटर. सर 20 सेंटीमीटर कहाँ यूज हुआ है इसके अंदर? A की वैल्यू चाहिए नहीं होगी ये. ठीक है. आगे सबका आंसर 1. देखो ये आ रहा है आंसर या नहीं. आगे Because सर. दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, बस F1 F2 ही निकालना. Next to write. A uniform cylinder of radius r is spinned about its axis to the angular velocity omega naught, is spinned about its axis with angular velocity omega naught and placed into a corner. Coefficient of friction between the surfaces is mu. Coefficient of friction between the surfaces is mu. How many turns will cylinder accomplish before coming to rest? How many turns will cylinder accomplish before coming to rest?
हमने ऐसे एक सिलेंडर को एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा नॉट एंड ऐसे कॉर्नर पे रख दिया एक, तो हमने बताना है कितनी रोटेशंस के बाद यहाँ पे रुक जाएगा, बिकॉज अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट होती फिर तो ये इधर चल पड़ता। हमने इसको ऐसे घुमा के रखा है, सो हमने बताना है कितनी रोटेशंस के बाद ये रुक जाएगा। How many rotations will it accomplish before it stops? क्वेश्चन समझ आया सबको? अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो 2 पॉइंट्स पे होगी, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। अगर मैं सिलेंडर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, मेरे को सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर सिलेंडर ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव टू सरफेस, इट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, से F1। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी अपवर्ड्स। बाकी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसका मास है कुछ? वेट ऑफ द सिलेंडर एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन से N1। और फोर्स देखो, और कोई फोर्स एक्ट करेगी? एमजी आपने सेंटर पे क्यों लिया? सर इसमें N2 क्यों नहीं लिया सर? F2 के साथ मेरे को ये बताओ पहले, और कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा? सर लेफ्ट वाली वॉल के साथ सर नॉर्मल रिएक्शन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल ने लगाया जो N2। सो बेसिकली एक वेट एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 फ्रिक्शन, सो ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्स देखो कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर मैं आपसे F1 की वैल्यू पूछूं तो F1 विल बी इक्वल्स टू N2 म्यू N1। F1 इसके इक्वल ही होगा एंड F2 इज म्यू N2। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में N1 और F2, बिकॉज ये सिलेंडर ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब N1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg। ऐसे भी मूव नहीं कर रहा सिलेंडर, दैट मींस N2 इज इक्वल्स टू F1। राइट साइड पे एक ही फोर्स है और लेफ्ट साइड पे भी एक ही है, तो N2 और F1 इक्वल होंगे। अपवर्ड फोर्सेस है N1 और F1, सॉरी F2, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू mg। पहले से फोर्सेस देखो जो मैंने मार्क किए हैं वो सारी समझ में आ रही हैं, और जो इक्वेशंस लिखी हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं? इतना समझ में आया अभी तक जो किया है? ओके, अब सिलेंडर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक सिलेंडर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सिर्फ F1 को नोटिस करो, सिर्फ F1। F1 के कारण ये सिलेंडर पे जो टॉर्क लगेगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। F2 के कारण क्लॉकवाइज। मतलब इन दोनों की टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है। यस अगर सिलेंडर का रेडियस r है तो टॉक अबाउट सेंटर कितनी हो जाएगी? F1 प्लस F2 इंटू r, F1r प्लस F2r।
और ये टॉर्क एक्सेलरेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन है या एंगुलर रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन, क्योंकि क्योंकि सर ओमेगा नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। And क्योंकि ये top will- एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही है, तो एंगुलर रिटार्डेशन आ जाएगी. एंगुलर रिटार्डेशन विल बी नेट टॉर्क अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर. और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है, इट्स हाफ mr². हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है ओमेगा नॉट. अगर ये रुक गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0. जीरो. अल्फा पता है. तो कौन सी इक्वेशन है जहां से मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? जैसे लीनियर मोशन में थी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. तो इसमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. तो थीटा आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा नॉट भी पता है, ओमेगा भी पता है, अल्फा भी पता है. तो हमारे पास थीटा आ जाएगा. अब अगर थीटा मान लो आया 4 पाई, तो कितनी रेवोल्यूशंस हो गई? आया नहीं, मैं ऐसे मानने के लिए कह रहा हूं. अगर थीटा आया 4 पाई, 2. बिकॉज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमेशा होती है थीटा बाय 2 पाई. 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियंस. तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालनी है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन, यू कैन से. वहां से निकालना है थीटा, वहां से निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. लॉजिक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाकी तो फिर मैथ्स रह गया अब. सो यू कैन राइट द कंसेप्ट. फ्रिक्शनल फोर्स acts at both points of contact, and the direction of torque due to friction is opposite to that of angular velocity. Direction of torque due to friction is opposite to that of angular velocity. This means that frictional torque will reduce the angular velocity of the cylinder and it comes to rest. frictional torque will reduce Angular velocity of cylinder and it comes to rest. अब सबसे पहले इसमें अल्फा निकालो क्या आता है. Use these equations. You can say for vertical equilibrium,
की वैल्यू निकाल लो क्या आती है, n1 n2 सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर. फिर यहाँ पे म्यू स्क्वायर क्यों आया? म्यू स्क्वायर n1. कहाँ पे? n2 हाँ, की वैल्यू नहीं पुट करोगे म्यू n1. जी. देखो यहाँ तक आ रहा आंसर. अंडर रूट नहीं है, सॉरी मैंने अंडर रूट कहाँ से लगा दिया, दिस इज नॉट अंडर रूट. 1 plus mu square ही है. Then use the equation theta is equals to सर ये 1 प्लस म्यू, ठीक है सर, ठीक है. number of revolutions is theta by 2 pi. बस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, you will get the answer. कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो, मैथ्स तो हो ही जाता है. डायग्राम देखो और जो इक्वेशंस शुरू में लिखी है उनको देखो, वो सारी समझ में आ रही है या नहीं. बिकॉज मैथमेटिकल पार्ट तो हो ही जाएगा. नेक्स्ट लिखो. A uniform disk of radius r is spinned to the angular velocity omega and carefully placed on horizontal surface. How long will the disk be rotating on the surface if friction coefficient is mu? And carefully placed के बाद सर repeat कर दो. How long will the disk be rotating on a surface if friction coefficient is mu?
अब थोड़ा सा डिफरेंट दिया, पहले हमने सिलेंडर को दीवार के साथ रखा था एज पे जाके, अब उन्होंने कहा एक डिस्क को घुमाया और ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया, तो वो घूमते घूमते अपने आप रुक गई। तो कितनी देर घूमेगी वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर? हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर डिस्क को रखा है। डिस्क कैसे प्लेस्ड है? क्या डिस्क हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है वर्टिकली? हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसके ऊपर डिस्क रख दी, एक प्लेट घुमा के रख दी, वो घूमते घूमते रुक गई। ठीक है। तो हमने बताना है वो कितने टाइम के बाद रुकेगी, हाउ लॉन्ग। पिछले क्वेश्चन में था कितना घूमेगी, मतलब कितने चक्कर काटेगी सिलेंडर, अब पूछा कितना टाइम घूमेगी डिस्क। लॉजिक इसमें भी सेम है। आपने जब डिस्क को रखा, डिस्क घूम रही थी, फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो अपोज करेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क अपोज करेगा तो एंगुलर रिटार्डेशन होगी, एंगुलर रिटार्डेशन होगी तो कितने टाइम के बाद रुकेगी। तो टी निकालना है थीटा की जगह। लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने के लिए तो सर वो डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, हाँ तो वो आप देखो ना कैसे करना है, आप इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली। सर जैसे डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना वो, जैसे फोर्स का सेंटर से। बिकॉज सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रही और सर्कमफ्रेंस पे सबसे ज्यादा लगेगी। बिकॉज अबाउट सेंटर अगर निकालोगे तो सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो इसलिए आपको पहले सबसे पहले यही निकालना है कि फ्रिक्शनल टॉर्क है कितनी, या फ्रिक्शन ही कितनी है, फ्रिक्शनल टॉर्क कितनी है। सो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन निकालो पहले। अच्छा मेरे को एक सिमेट्री को यूज करना है मैंने, बिकॉज इसका रेडियस मान लेते हैं से इट्स कैपिटल आर। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस आर और दूसरे एंड पे स्मॉल डिस्टेंस आर, या इधर स्मॉल डिस्टेंस आर, इन सारे पॉइंट्स पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर। सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है तो, यस सर। है ना? तो बिकॉज सेंटर से डिस्टेंस सेम हो तो टॉर्क सेम लगता है, तो हम यहाँ पे एक रिंग मान लेते हैं, इस रिंग का रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। सो पहले सिर्फ हम इस रिंग पे टॉर्क निकालेंगे कि इस रिंग पे टॉर्क कितनी लग रही है ना? अगर इस रिंग का मास, बिकॉज पूरे का मास डीएम है, पूरे का मास डीएम है, इस रिंग का मास जो होगा दैट वुड बी, सॉरी पूरे रिंग का मास अगर एम है, सिर्फ इसका मास एम, तो इस रिंग का मास कितना, रिंग का मास कितना होगा? बता सकते हो? यूनिटरी मेथड। डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। डिस्क का मास है एम, तो सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, अगर आपको याद है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की डेरिवेशंस भी ऐसे ही की थी। डिवाइड द डिस्क इनटू नंबर ऑफ रिंग्स। each of radius r
स्मॉल आर वेरीज फ्रॉम, सबसे छोटा रिंग जो होगा उसका रेडियस कितना होगा? 0। और सबसे बड़े रिंग का कैपिटल आर। अगर मैं सिर्फ आपसे मास ऑफ रिंग पूछूं, से डीएम, मास ऑफ रिंग वुड बी सिग्मा डी ए, ठीक है। सिग्मा इज m बाय पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको याद है तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गया था, हमने रेडियस लिखा, एरिया लिखा था 2 पाई आर डी आर, लेंथ इनटू थिकनेस। So this comes out to be pi r कैंसिल हो जाएगा 2m by r dr। सर नीचे कैपिटल आर नहीं आएगा सिग्मा का? हाँ कैपिटल आर है, सॉरी, ठीक है ठीक है। यहां तक ठीक है। अगर मैं पूछूं ये डीएम है, डीएम निकाल क्यों नहीं हम वैसे? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है तो फ्रिक्शन हम कितनी लेते हैं? इस रिंग पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी? अगर मैं एक बॉडी को ऐसे रख देता हूं तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी? इसके वेट के इक्वल। और फ्रिक्शनल फोर्स होगी म्यू एन। तो डीएम निकाल लिया मैंने, वेट हो जाएगा डीएम इंटू जी, और फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी म्यू डीएम इंटू जी। फ्रिक्शनल फोर्स और रिंग अगर मैंने बतानी है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रिंग इट्स म्यू डीएम इंटू जी, और टॉर्क ऑन रिंग आर इंटू एफ। डीएम की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, यू विल गेट द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? सर आंसर 3 ओमेगा r by 4 म्यू जी है टाइम 3 का। ओमेगा 3 ओमेगा नॉट आर बाय 4 म्यू जी, ठीक है। सो यहां से इसके बाद हम निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके टॉर्क, टॉर्क निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करके 0 टू कैपिटल आर, फिर अल्फा, टॉप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, और टाइम निकालना है तो, और ये फॉर्मूला कब लगाना है? अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट आता है, बिकॉज काइनेमैटिकल इक्वेशंस तभी लगेंगे अगर अल्फा कांस्टेंट होगा। तो यहां से पहले आप टॉर्क निकालो कितनी आती है इंटीग्रेट करके, फिर अल्फा निकालो, फिर टी निकालो। करो कंप्लीट जिन्होंने नहीं किया इसको अभी। इंटीग्रेट करके फर्स्ट फाइंड द टॉर्क, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अल्फा, और फिर टी निकालना है तो ओमेगा 0 ओमेगा नॉट हमें पता है। करो कंप्लीट इसको जरा। A conical pendulum, which is a thin uniform rod of length L and mass m, which is a thin uniform rod of length L and mass m, rotates. सर एक बार रिपीट कर दो। A conical pendulum, which is a thin uniform rod of length L and mass m, rotates uniformly about vertical axis, rotates uniformly about vertical axis with angular velocity omega. The upper end of the rod is hinged. Find angle theta between rod and the vertical. Find angle theta between rod and the vertical.
कॉनिकल पेंडुलम सबको पता है क्या होता है? कॉनिकल पेंडुलम इज लाइक जैसे रॉड है, इसका अपर एंड हिंज्ड है, यहां से फिक्स्ड है और ये ऐसे घूम रहा है। मतलब इसका जो पेंसिल है कोन के ऊपर ऐसे घूम रही है। तो हमने बताना है इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनेगा जब ये ऐसे घूमेगी। एंगल विच इट मेक्स विद अ वर्टिकल। एक तो सिंपल पेंडुलम होता है जिसको हम सिंपल ऐसे लेते हैं कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सो ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि एक एंड फिक्स्ड और ऐसे घूम रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद अ वर्टिकल। सो इसका अगर डायग्राम बनाएं तो जो पाथ ऑफ रॉड होगा हमें इसकी लेंथ दी है L, इसका मास दिया है M। ये एंगल थीटा बताना है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एंगल थीटा कितना है। क्वेश्चन एक बार ही पढ़ लो, फिर मेरे को बताओ हम कैसे करें इसको। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में गिवन था rotates uniformly. Uniformly means constant angular velocity. कोई भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कब मूव कर सकती है? जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट टॉर्क, 0 इस पे नेट टॉर्क 0 लग रहा है रॉड पे, बिकॉज अगर रॉड पे टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन होगी, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगी। बिकॉज हमें दिया है इट्स मूविंग यूनिफॉर्मली, angular acceleration or net torque on the rod should be 0. So you can write first the concept. As conical pendulum is moving with, constant angular velocity. Conical pendulum is moving with constant angular velocity. It implies that angular acceleration as well as net torque on the pendulum is 0. इतना समझ आया पहले, फिर अगले कंसेप्ट पे जाऊं मैं। इतना समझ आया? yes sir कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी पेंडुलम पे? hinge force of weight The centripetal force. Weight acting downwards, and weight is always marked at center of mass. Mass. Tension in the rod and centrifugal force on any point of the rod और hinge force. इसमें से टेंशन और hinge force इस पॉइंट से पास करेंगी O से। yes sir दैट मीन्स उनके कारण टॉर्क लेने की जरूरत नहीं है। वेट जो एक्ट करेगा दैट इज एट सेंटर। ये डिस्टेंस अगर पूरी लेंथ है L तो दिस डिस्टेंस शुड बी
L/2 sin थीटा। मेरे को बताओ टॉर्क ड्यू टू mg की डायरेक्शन क्या होगी? R क्रॉस F। मैं इस एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके आसपास ये घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालता हूं तो R इज दिस डायरेक्शन, mg इज डाउनवर्ड्स, टॉर्क इज इनवर्ड्स। R की डायरेक्शन में हाथ रखो, mg डाउनवर्ड्स है, दिस R इज L/2 sin थीटा, तो टॉर्क इज इनवर्ड्स। अगर मैं कोई भी रॉड का पार्ट लेता हूं, मैं रॉड का कोई भी स्मॉल पार्ट लेता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करेगी वो बाहर की तरफ एक्ट करेगी। टॉक अबाउट दिस पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर डीएफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे इनटू L/2। मतलब ये जब मेरे को डीएम टॉक, मेरे को जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टॉक निकालना है, तो मेरे को ये बताओ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टॉक है वो सर एक बार रिपीट कर दो, हर मैं अभी पॉइंट, नहीं किया था। टॉक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करेगा वो वेरिएबल नहीं होगा, इंटीग्रेशन से नहीं निकलेगा, यस सर। बिकॉज उसका डिस्टेंस वेरिएबल है, उसका डिस्टेंस वेरिएबल है, तो टॉक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटीग्रेशन से निकलेगा। और टॉक ड्यू टू, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टॉक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटीग्रेशन से क्यों निकलेगा? एक बार मैं थोड़ी लेट ज्वाइन किया था, समझ में नहीं आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटीग्रेशन से क्यों निकलेगा? बिकॉज उसका डिस्टेंस ही वेरिएबल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हर पॉइंट पे अलग जगह पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, अब सेम टॉक कैसे ले लोगे? हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस ही अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बिकॉज नेट टॉक जीरो है, मतलब टॉक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू टॉक ड्यू टू mg। mg के लिए तो सिंपल है, mg इंटू L/2 sin थीटा। तो बेसिकली टॉक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालनी है और उन्हें इक्वेट करना है। सो यू कैन राइट, इसके आगे पहले कंसेप्ट लिखो, द फोर्सेस एक्टिंग आर। हाँ जी सर जैसे इसमें हमने अगर जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करना तो फिर समझ नहीं आ रहा उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने कहा था ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर उसी फ्रेम में हो, और जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं यूज हो सकती इसमें। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो कुछ होती नहीं ना, वो तो हम लेते हैं कि रिजल्टेंट होगा, वो तो फिर टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा सिर्फ एक, तो वो वैसे भी करोगे तो भी आना तो यही है। बिकॉज अगर आप ग्राउंड फ्रेम में लेते हो फिर आपको सेंट्रीफ्यूगल नहीं लेनी, फिर आपको टेंशन का कंपोनेंट लेके उसकी टॉर्क निकालनी है, और टेंशन का कंपोनेंट भी हर पॉइंट पे टी अलग होगा बिकॉज रॉड का मास है। उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ, ओके सर। you can write the forces acting on the rod are tension in the rod, weight, tension in the rod, weight, hinge force, hinge force, and centrifugal force. As tension and hinge force passes through point O, tension and hinge force passes through point O, torque due to
these two forces is 0, about 0.0. Torque due to these two forces is 0, about 0.0. If there is uniform distribution of mass, if there is uniform distribution of mass, weight will act at the center of mass. Weight will act at the center of mass, and torque due to weight is सर आपने ये पॉइंट ओके अबाउट लिया ना टॉर्क? यही पॉइंट फिक्स्ड है ना, हिंज हो गया ना, मैंने आपको बोला था कि हिंज्ड है तो हिंज पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे टॉर्क हमेशा। सर उससे तो बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेम उसकी लाइन में आ जाएगी, लाइन ऑफ कांटेक्ट पे। और नहीं आएगी यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लाइन ऑफ कांटेक्ट में आ जाएगी, बना लो। ठीक है सर, आगे सुनो, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ। जब मेरे को टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, अबाउट 0.0, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल मास लिया dm, ये डिस्टेंस अगर x है, ये थीटा है, दिस विल बी x sin थीटा, और ये x cos थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस mr ओमेगा स्क्वायर, r इस केस में कितना हो जाएगा, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है इट्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x sin थीटा। x sin theta। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है o से, x sin थीटा, x cos थीटा। x cos theta। टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स x cos theta into dm इसमें वेरिएबल क्या, थीटा वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है? कांस्टेंट। वेरिएबल x है, x और मैं स्मॉल मास dm को लिख सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। दिस कम्स आउट टू बी x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और dm को मैं ऐसे लिख सकता हूं m by l dx, बिकॉज यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ विल हैव अ मास ऑफ m by l, तो अगर लेंथ dx है तो m by l into dx। सर एक बार ये समझा दो, x cos थीटा क्यों है मल्टीप्लिकेशन में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है o से इस फोर्स का, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। टॉर्क कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज x cos थीटा इनटू df। ठीक है सर। हमने यही किया था ना, f परपेंडिकुलर इनटू r या r परपेंडिकुलर इनटू f। sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाय 2, तो मैं इसको लिख देता हूं m by 2l sin 2 थीटा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dx। देखो क्लियर यहां तक? इंटीग्रेट कर देंगे तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 3, x वेरीज फ्रॉम x, मैंने कौन सा डिस्टेंस लिया, ये, तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, और इंटीग्रेट कर देंगे तो x क्यूब बाय 3 0 टू l। टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस m by 6l, m by 6l नहीं आएगा, l तो कट जाएगा,
क्लियर? इसको वेट के कारण जो टॉर्क है उससे इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सर हाँ जी, सर ये m/2l m2 कहाँ से आया वो नहीं समझ आया, बाकी आ गया। मैथ्स का फॉर्मूला मेडिकल है नॉन मेडिकल? नॉन मेड। फिर भी समझ नहीं आया? हाँ ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे ना शर्म आनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो, मेडिकल वालों का बनता है। आप तो ट्रिग्नोमेट्री की आरडी की पता नहीं इतनी एक्सरसाइजेस कर दी होंगी इस साल। तो दोनों को इक्वेट कर दो, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी और इस टॉर्क को, एंड यू विल गेट द आंसर। बताओ मेरे को आंसर क्या आया? इक्वेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी विद दिस टॉर्क। A plank of mass m1 with a uniform sphere of mass m2 placed on it. With a uniform sphere of mass m2 placed on it, rests on a smooth horizontal plane. Rests on a smooth horizontal plane. A constant force F is applied to the plank a constant force F is applied to the plank with what acceleration will the plank and center of sphere move? With what acceleration plank and the center of sphere move? Provided there is no sliding between plank and sphere. मेरे पास एक प्लैंक है, which is resting on smooth horizontal surface. हमें दिया है कि ये प्लैंक जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर एक स्फीयर बड़ा है, इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बतानी है ACM, और प्लैंक की एक्सेलरेशन बतानी है। फर्स्ट थिंग, जब मैं प्लैंक पे फोर्स लगाऊंगा तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड? लेफ्ट Left प्लैंक के side. ऊपर लेफ्ट में लगेगी सर। लेफ्ट में लगेगी। तो अगर प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो प्लैंक पे एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन पीछे, इस पे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई थी आगे, तो इस पे फ्रिक्शन लगी पीछे। इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन बनी F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैंक इनटू A।
मास दोनों का सेम दिया, अलग अलग दिया. A plank of mass m1 and a sphere of mass m2. So Planck की free body equation बनी F minus small f is equals to ये क्लियर सबको? स्फीयर पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? फॉरवर्ड. राइट साइड. स्फीयर पे ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं. स्फीयर पे ग्राउंड फ्रेम में कोई और फोर्स लग रही है? नो सर. नो सर. सर तो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन F is equal to m2 into ACM. Torque due to friction on sphere. FR. RF. Okay. And angular acceleration? Tau by I. इसके कारण ये प्लैंक क्लॉकवाइज मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज? इस टॉर्क के कारण एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन corresponding to टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसमें रिलेशन क्या था? AT is equal to R alpha. क्लियर है? यस सर. मैं आपसे बोल रहा हूं, अब समझो क्या है. मेरे पास एक स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ACM से, ये ऐसे घूम रहा है. इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन corresponding to angular acceleration is R alpha. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टोटल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? ACM प्लस R अल्फा. ACM प्लस R अल्फा. क्लियर सबको? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज AT और ACM एक डायरेक्शन में है. There is no slipping between sphere and Planck. स्फीयर और प्लैंक के बीच में नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द सरफेस. इसमें सरफेस की एक्सेलरेशन कितनी है? A1 F माइनस F अपॉन m1. और स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ACM प्लस AT. मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये AP और ये AP सेम होना चाहिए. इसको अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर लिख दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर नो स्लिपिंग, AP should be equals to ASP. तो यहां से हमने ACM की वैल्यू निकालनी है और AP की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन लॉजिक समझ आया सारा? हमने पहले फोर्सेस मार्क कर ली. प्लैंक पे एक अप्लाइड फोर्स थी, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही थी, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी F माइनस F, एक्सेलरेशन होगी F माइनस F अपॉन m1. उसका काम खत्म, बस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक निकाल ली. हमें क्या है? देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्फीयर एंड प्लैंक. मतलब स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सेलरेशन वही होगी जो प्लैंक की है. तो स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी. पहले हमने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाली. सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स ओवर F2 अपॉन m2, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. देन यू हैव टू फाइंड
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू एंगुलर एक्सेलरेशन, AT और ACM की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दिया और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको AP के साथ इक्वेट करना है। सो कंप्लीट करो इसको। अब किसी को कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैथ्स अब इक्वेशन सारी बोर्ड पे लिखी है, यू हैव टू कंप्लीट दिस।